introduce yourself? Good evening, sir. My name is Rupika Sharma, and I belong from Raipur, Ludhiana district. And I have done my schooling from Swami Gangagiri Senior Secondary School, Raipur. And after that, I did my graduation from Punjab Agriculture University, Ludhiana. When I was in my first year, I started a YouTube channel. From there, I started making vlogs and informational videos. As my channel grew up, and after around 1 year, uh, some college canteens or other street vendors started approaching me for promoting their shops and all. And from there, I got interested in marketing. I promoted their uh, I promoted their shops and showed it on my channel. So from there, I got interested in marketing and I started. How much was your subscription in the YouTube channel in the first 1 year? In the first 1 year, I got around 600 subscribers. So that's very less. And what is the level right now? So that actually, I didn't expanded my YouTube channel. Till now, what is the number of subscriptions? It's around 1000 only, but I haven't posted from about 1 year because I was preparing for CAT. But 1000 is also. Do you consider it a very successful YouTube channel? No, sir, I don't consider. But what was the theme of? What were the contents you were posting? I was posting around the content which was revolving around the university level. So I guess I can expand if I. Okay, what is your solution to the current farmers' agitation, and how, if you are the finance agriculture minister, how will you solve it? Sir, currently our farmers are dependent on major crops like rice. आप लोग बैठे हो, ये क्वेश्चन कोई भी किसी को भी पूछा जा सकता है. आप पंजाब से हो, एग्रीकल्चर ड्रिवन स्टेट से हो, आपका बॉर्डर सील करके बैठे हैं फार्मर्स दो तरफ से फॉर ऑलमोस्ट ईयर, एंड पंजाब इज सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज. कोई भी किसी से भी पूछ सकते हैं. दे आर सिटिंग देयर, दे नो यू आर फ्रॉम पंजाब, दे वुड लाइक टू हैव योर व्यूज. 80% चांस के मैं क्वेश्चन ज़्यादातर वो पूछूंगा जिनमें 80% प्रोबेबिलिटी है पूछे जाने की. 20% नहीं भी पूछ सकता, जीके ना भी पूछे, अपनी तैयारी 300% होनी चाहिए. जो पूछे लो लो लो, फिर कैसे नहीं होगी सिलेक्शन. ओके, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? यू आर द एग्रीकल्चर मिनिस्टर, you have to solve this agitation issue. How will you do it? So in the current scenario, which I have heard from my teachers from Punjab Agriculture University, that our farmers are dependent on major crops only like rice, wheat, and all. They are not growing much of millets and pulses, which are also very important and require very less water, which is they are very sustainable crops and can save our environment. Rice require more water and this is making our water scarcer. So I guess I would encourage farmers to grow more of millets and pulses. Why it is not happening so far? Because Why the farmers are not shifting? The Modi has been airing millet for almost 3 years. Some states have started. Why Punjab doesn't do it? Why the farmers in Punjab are not doing it? because I guess they are concerned about returns. Rice is giving huge returns to them, but on the other side, pulses are not. We will come to it. So what are your strengths? My strength is public speaking. You look very soft for an MBA program. Which specialization you want to do? I want to do marketing. Marketing requires even more sharper people, and who can think on their feet. Can you sell? You will be having a pen with you. I don't have. यहाँ होगा. Kindly sell this pen to me. You want to be in marketing? Yes, sir. Sales and marketing go hand in hand. What is the difference between sales and marketing? So sales, we just share not. You don't know, and you want to do an MBA in marketing. So We should take you. I will learn You should have during my learned MBA. before this interview, if this interview was important
should have read something about marketing. You know Philip Kotler? Sorry, sir? Philip Kotler, have you heard his name? No, sir. You don't know ABC of marketing. STP, are you aware what is STP? No, sir. 5 7 P's of marketing. No. Which ad campaign you liked? TV ad campaign in last few years and why? So a few months back, I saw an ad on Canva. So there was ad in which some people, one person from a company was leaving the company, and his colleagues wanted to give him a farewell. So they wanted the moment to be very special for him, as he was his very close friend. So they made a poster on Canva and organized a party. So this was a bit emotional and classic ad and touched my heart, so that's why I liked it. What are good traits of a ad? Good ad should have which basic traits? 2 3 very important. It should represent the product. Yeah, that is basic. Very basic. Other than that, It should be eye catchy. It should caught people's attention. yeah. One is okay, eye catching. Second is attention. That's the same thing. What else? People should relate to ads. What else? Okay, we'll come to feedback. I'm not asking you details about your biotechnology. They can ask how curd is made, how milk plants work, how powder milk is made, how yeast is, what is the role of yeast in curd making, in other cheese making, etc. What is the difference between cheese, different qualities of cheese, what is the difference between A2 milk and normal milk, all these can be asked from you. ठीक है? Then your own field का ये ना सोचना कि उनको कुछ नहीं होगा, कोई पता नहीं हो बायोटेक्नोलॉजी की ग्रेजुएट हो, फिर MBA किया हो और वहाँ प्रोफेसर बनी हो PhD करके, तो थोड़ा बहुत आपने ब्रश अप करके जाना. मेरी वीडियो नहीं देखी होगी, उसमें कहा गया था सेल्स एंड मार्केटिंग की बुक लेके पढ़ लो, अभी ऑनलाइन मिल जाएगी फिलिप कॉटलर की बुक PDF. इसकी समरीज देख लेना, अभी इतना टाइम है नहीं, समरीज होंगी सारे चैप्टर्स, उसको देख लेना. और टाटा मैकग्रा-हिल की या कोई भी टॉप मार्केटिंग के ऊपर मेन टर्मिनोलॉजीज, मार्केटिंग एंड सेल्स टर्मिनोलॉजीज और उनका एक्सप्लेनेशन, कोई ना कोई यूट्यूब वीडियो मिल जाएगी, उसको देख लो. इतना तो देखना पड़ेगा अगर हमने मार्केटिंग में MBA करनी है. Coming to your introduction, it is your USP that you are coming from a very small town. You just mentioned Raikot. Sitting in Chennai, they don't know what is Raikot. They don't know that it is Ludhiana is a sea city. This is a very very small town near Ludhiana. So you will say it's a very small कस्बे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ओके, वेरी स्मॉल टाउन. वेरी भी लगा सकते हो, यहाँ रहने दो, वेरी वेरी के ऊपर स्पेसिफिक हो जाएंगे. व्हाई यू मेंशन वेरी? यू वांटेड अस टू नो समथिंग बाय दिस. So I hail from a very, लिख दो, very very small town near Raikot, near Ludhiana. ठीक है, where I have studied my schooling and all my +2 has been from there. Then I opted for this PE. Why you opted for biotechnology? Why you did not go for management in your graduation? So because I did non-medical in my +2. Because of the social guidance, social and parental guidance. 10th में marks कितने? 91 है. So I got very good marks in 10th, and it was the way I was told by my parents, teachers and society. It was considered as obvious that I'll take science. पापा क्या करते हैं? टीचर है. और मम्मा? मम्मा भी टीचर. मम्मा भी टीचर है. तो बस यही कहना कि पेरेंटल एंड सोशल गाइडेंस, आपने उनका मेंशन नहीं किया, यहाँ थोड़ा इंट्रोडक्शन में थोड़ा मेंशन कर दो. बोथ माय पेरेंट्स आर टीचर, क्योंकि ये लोग भी टीचर हैं. कहीं से भी हमको छोटा छोटा भी मिल जाए, एक एक बूंद से पानी का गिलास भर सकता है. तो मेंशन दैट both my parents are teachers. They school teachers हैं. हाँ जी. प्राइवेट या गवर्नमेंट? मम्मा प्राइवेट है, पापा एडेड स्कूल है. But they are
प्राइवेट स्कूल, एडेड भी प्राइवेट ही होता है एक तरह से। तो both my parents are teachers, they teach in school. So post my introduction, post my graduation जिसका क्वेश्चन आने का चांस है आप पे एड्रेस कर दो। Post my 10th, because I got good marks due to social societal guidance and parental guidance and teachers, I was told that I should take commerce only, sorry, science only, and then I did in the science। फिर वो कहेगा कि आपने AIEEE और वो बीटेक वगैरह में नहीं हुआ, नहीं हुआ था तो सत्य बोल देना नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? सच्चाई, तैयारी नहीं अच्छे से हुई थी, क्यों नहीं हुई थी? ये सत्य बोल देना। I'll be candid in admitting my mistakes, sir. I did not take coaching। फिर वो कहेगा कि तुम्हारे मम्मी पापा टीचर हैं तो उनको तो तुम्हें लगाना चाहिए था अच्छे कोचिंग में, ये वो। बिकॉज़ स्मॉल टाउन था तो स्मॉल टाउन था और कहना टीचर्स जो स्कूल के थे वो कह रहे थे कि हम जो करा रहे हैं इससे हो जाएगा। फिर वो कहेगा कि आपकी अवेयरनेस क्या थी, आपके स्कूल से इस तरह पढ़ के अपने आप करके कितनों का हुआ, वो पूछ सकता है। तो कहते हैं 1 or 2 examples were there, somehow I did not understand that only one example out of 1000 was not the right approach to take, but where the mass students were going, they were going through coaching centers, so I should have taken that approach, which I did not take, but then I have improved it for my CAT preparation। I have prepared it by taking coaching classes online, by taking various material online, Klarna का। ठीक है, फार्मर्स एजुकेशन बहुत वीक आंसर, बहुत वीक। आपको जब मैंने एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना दिया तो आपको एक होलिस्टिक अप्रोच लेनी पड़ेगी। मैंने पिछले साल के कुछ वीडियोस भेजे भी हुए हैं, उनको देख लेना, और कुछ और होगा तो वो भी भेज दूँगा क्लास में, तो हम डिस्कशन करेंगे। तो इशू ये है कि एज ए मैक्रो लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है। 85% farmers in India are marginal। सुना होगा ये टर्म, मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। स्मॉल फार्मर्स, इनके पास 4 एकड़ से कम की लैंड होल्डिंग होती है। 80% आर इन दिस ब्रैकेट। 4 इंटू मतलब इनकी इनकम ऑन एन एवरेज 15 to 20,000 पर मंथ मैक्स है आज जो सिनेरियो, और 15 ही मान के चलो, 15,000 पर मंथ उनकी इनकम है, मंथली इनकम। उसमें उन्होंने बच्चों को पढ़ाना भी है, खाना भी खाना है, उनके लिए टीवी भी लगाना है, पेट्रोल भी डालना है, दे हैव टू लिव आल्सो, मैरिज भी करनी है, कनाडा भी भेजना है। दिस इज 85% फार्मर्स सिचुएशन। जब आप इसको यहाँ से कोट करोगे फिर नीचे जाओगे, वो कहेगा बंदे को पता है, और इसको पता है कैसे मैंने अपना पॉइंट रखना है। विद डाटा यू स्टार्ट फ्रॉम ए मैक्रो डाउन, systematic smart way of putting up your things। This is ABC of management, how you present yourself, how you present your case, how you present your data। वहाँ से कहानी शुरू होती है। अगर वो उनको सही लग गया, बाकी इंटरव्यू ढीली होगी कि अच्छा ये दिख गया स्पार्क कि मैनेजमेंट के लिए स्पार्क है, और ले लेंगे। सो यू हैव टू स्टार्ट विद दिस। मेरी पुरानी वीडियोस में है ये सारी, और भी 6-7 है, मैं वो भी आज ग्रुप में डाल दूँगा। फार्मर्स के ऊपर पूरी डिस्कशन हुई थी क्लास में। 85% farmers are marginal and small farmers who have less than 4 acre land। So the way they are presently earning through wheat and rice, it is just very low। They have to go for alternate crops like sugarcane, then baby corn mushroom, then mushroom, baby corn comma mushroom, and millets। what you said, millets से पहले आएगा दाल, cereals, pulses, cereals, etc etc। so उसमें भी इश्यूज हैं कि सबसे बड़ा इशू फार्मर को ये है अनएजुकेटेड हो। 99.9% farmer in this bracket, who is 85% farmer, who is a very poor farmer, he is illiterate। तो he fears कि मैं आज वीट और राइस लगा रहा हूँ, इतने सालों से लगा रहा हूँ, मेरे को पता है पत्ती पीली होगी ये दवाई डाल देनी है, पत्ती इतनी पीली होगी ये डालनी है, ब्राउन होगी मैंने ये कर देना है, मेरे को पता है आराम से मैं इसको सब ये 2 क्रॉप्स को 15-20 साल से करता हूँ, मुझे पता है कैसे इसको हैंडल करना है। So if he gets any problem, he knows how to tackle it।
So state government, central government, NABARD, and this insurance company, they have to hold the hand of the farmer. They have to tell them कि अगर तेरी क्रॉप खराब हुई, don't worry, we will buy, तू लगा alternate क्रॉप, तेरे को जितना वीट राइस से पैसा मिलना था एकड़ का हम देंगे, तेरी इंश्योर करके करके देंगे, और जो तू अल्टरनेट लगाएगा 2 गुना कमाएगा, कर, वी आर विद यू. दैट इज लैकिंग. पंजाब गवर्नमेंट प्लेज पॉलिटिक्स, ट्राइंग टू, मतलब जो अनरीजनेबल डिमांड्स भी है फार्मर्स की, कि सबकी लगा दो जी पेंशन, सारे फार्मर्स की, फार्मर्स के फार्म लेबर की भी पेंशन लगा दो. आज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को पेंशन नहीं दी जा सकती, इतना प्रॉब्लम्स हैं, तो आप कह रहे हो सारे फार्मर्स को पेंशन लगा दो, WTO से निकल जाओ. आपको डिमांड्स पता होना चाहिए एजुटेशन की क्या है. MSP की गारंटी दे दो. MSP की गारंटी स्टिल कैन बी कंसिडर्ड. पिछली मीटिंग में स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट सेट 5 क्रॉप्स पे दे देते हैं, अप टू 5 इयर्स गारंटी दे रहे हैं. they said नहीं, ऑल क्रॉप्स 20, 23, 25 मेन क्रॉप्स पे लगाओ और गारंटी राइटिंग में दो, ऑल टाइम दो, 5 साल नहीं. और साथ में ये भी डिमांड्स, जो लोग वहाँ डिसीज हुए पिछले एजुटेशन में, उनको वो दो, कंपनसेशन दो, सारे फार्म लोन वेवर कर दो. कई फार्मर्स ने, व्हेन आई टॉक टू सम पीपल इन बैंक, दे टेल some of the farmers that have taken loans for things which they did not need. If a small farmer doesn't need a tractor, so he will buy a tractor just to show his status. He can easily hire a tractor because plowing, cultivation, थोड़े टाइम के लिए ट्रैक्टर की जरूरत होती है और रेंट पे मिलता है पिंड में, बट he has to buy, he wants to show new owner दा John Deere दा ट्रैक्टर, फिर म्यूजिक लगाना है, ये लगाना है, expensive expenditures. तो those kind of things are there. Then expensive, other खर्चास like marriage etc, वो भी खर्चे फालतू करने, लोन ले लेके, अब उसको वेव कर दे गवर्नमेंट, तो इतना कहाँ से बर्डन आएगा. So there is need to be farmers का, unfortunately इस अभी जो एजुटेशन चल रही, अनफॉर्चुनेटली इसमें गिव एंड टेक वाला पोजीशन में फार्मर्स ने एक बार भी मीटिंग नहीं की. 3 मीटिंग्स हुई, एक में भगवंत मान की गवर्नमेंट के लोग भी इन्वॉल्व थे चंडीगढ़ में, और एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी आता था दिल्ली से, डिस्कशंस होती थी, एंड दीज पीपल वर, द फार्मर साइड वाज फर्म कि जो हम कह रहे हैं वही करो, नहीं तो अब चले दिल्ली. सो इफ यू आर इन ए थ्रेटनिंग मोड दैट एट दैट लेवल, देन सेंटर आल्सो सेड कि ठीक है भैया जो करना कर लो, नहीं माननी बात तो जो करना कर लो. क्योंकि इतने अभी संयुक्त किसान मोर्चा की आज की आई है स्टेटमेंट कि जो अभी जो एजुटेशन चल रही है ये वेल प्लान नहीं थी, वेल कंसीव्ड नहीं थी, इसके कोई ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं थे. और ये जो पंधेर इसको लीड कर रहा है, जो बड़ी मैंने ऑब्जर्व किया, जब 26 जनवरी का एजुटेशन हुआ था दिल्ली में, तो सबसे एग्रेसिव लोग इन्हीं के थे. इन्होंने जाके पुलिस वालों को मारा मुरा, बैरिकेडिंग तोड़ी, गलत रास्ते पे गए, लाल किले की तरफ ले गए एक्सेट्रा. दे आर क्वाइट एग्रेसिव एजिटेटर्स, नॉट पीसफुल एजिटेटर्स. तो इसलिए सेंटर हरियाणा भी कह रहा है कि हमारे यहाँ के अंदर काम खराब हो जाएगा, यहाँ से जाने देंगे. सोनीपत के बॉर्डर पे जैसे पहले सिंगू बॉर्डर पे लगा था मोर्चा, वैसे लग जाएगा, हमारी स्टेट की खराब होता है कहानी. तो पंजाब गवर्नमेंट पूरी बैकिंग कर रही है. कहते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट का भी DGP परसों मिल के आया, बोलता है कि वी पंजाब गवर्नमेंट स्टैंड्स विद ऑल डिमांड्स ऑफ फार्मर्स. अब उसमें WTO से भी बाहर निकलने को कह रहे हैं. तो ये सब, there are some unreasonable demands, there are some reasonable demands. There is a government, state government also has to do something. Here state government says center पे लड़ो, सेंटर से MSP लो, सेंटर से ये करो, सेंटर से वो करो. हैंड होल्डिंग आप क्या करोगे एज ए स्टेट, आपकी स्टेट के लोग हैं, आपने क्या कर लिया 2-3 साल से आप गवर्नमेंट में हो, कितनी की रोटेशन कर पाए क्रॉप की, आपसे पूछेगा. इसका बोलते हैं चलो एग्रीकल्चर वाला कोई और तो नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी. चलो वो क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ. एजुटेशन वाला मोटा मोटा हो गया, तो आप मैक्रो लेवल से स्टार्ट करोगे कि 85% फार्मर्स आर मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स. अनफॉर्चुनेटली दे आर वेरी पुअर एंड दे आर, आई थिंक ऑलमोस्ट 95% ऑफ देम आर इलिटरेट. तभी उनको ये जो था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में डरा दिया कि आप कहाँ अंगूठा लगाओगे, कौन पढ़ाएगा. एंड दे वर राइट. वो इनोसेंट है, अनएजुकेटेड है, भोले, तो उनके दिमाग में जो डाल दिया जाएगा डर, उनको जो लीडर बने हुए हैं तो वो डर बैठ जाएगा. मोदी फेल्ड मिजरेबली
इन वो जो उसने माफी मांगी कि आई कुड नॉट कन्वे दैट प्रॉपर्ली, दैट्स 100% करेक्ट. ही कुड नॉट कन्वे देम. थर्ड लॉ जो थे, तीनों लॉ पढ़े हैं फॉर्म्स के, जो पिछले लॉज थे जो वापस हुए. फिर की करना जाना एमबीए कर लेना. तो 4-4 3-3 पेज के लॉज थे. जो थर्ड था दैट वाज टोटल नॉनसेंस. एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट. मैं पढ़े थे मतलब अभी याद नहीं है. उसमें गवर्नमेंट वांटेड कि हम लोग कोई भी कितनी भी होर्डिंग कर ले किसी भी कमोडिटी की, गवर्नमेंट तब तक उसमें इंटरवीन नहीं करेगी, उसको पकड़ेगी नहीं होर्डिंग के लिए, जब तक उसकी प्राइस विद इन ए ईयर 100% नहीं बढ़ जाएगी. तो कॉर्पोरेट्स के लिए वो गेम थी. कॉर्पोरेट्स आना चाह रहे थे कैपिटल फार्मिंग से, और मंडी बोर्ड खोलने वाले थे कि कोई भी आइटम कहीं पे भी जाके बेच सकता है. वो तो चलो ठीक था. फर्स्ट लॉ वाज नॉट, इट वाज इन द लॉन्ग टर्म, मुझे लगता है कि इट वाज, इफ इट वाज बोथ द फर्स्ट एंड सेकंड लॉ इफ प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड, इट कुड हैव बेनिफिटेड फार्मर्स. क्योंकि जब जो यहाँ पे सोनीपत के पास कैपिटल फार्मिंग कर रहे हैं लोग, उनको कंपनी ला के बीज देती है इसके लिए, बेबी मशरूम के लिए, सॉरी बेबी कॉर्न के लिए, और फिर उसको हेल्प करती है कि क्या पेस्टिसाइड डालना क्या नहीं डालना, कैसे इसको पानी देना है क्या नहीं करना, ड्रिप इरिगेशन. फिर जब बन जाता है उसका प्रोड्यूस भी ले जाके बेचती है, और फार्मर को 3 गुना ज्यादा पैसा बन रहा है रहने में. तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ कैपिटल फार्मिंग. और उसमें नो डाउट द फार्मर्स हैड फियर्स, और उस फियर को एंटी नेशनल फोर्सेस ने भी, और उनके कुछ लीडर्स ने भी, और कुछ ऑपोजिशन पार्टीज ने भी अच्छे से एक्सप्लॉइट किया. क्यों किया? क्योंकि मोदी ने उनको इग्नोर किया काफी टाइम तक. कोविड चल रहा था, एजिटेशन हुआ पहले मालदा में, शंभू बॉर्डर पे जहां अभी चल रहा है. फॉर ऑलमोस्ट 6 months द फार्मर्स केप्ट ऑन सिटिंग देयर. उन्होंने कुछ रेल रोको भी किया, बट कोविड चल रहा था. मोदी ने कहा ऐसे डाई डाउन हो जाएगा, सिर्फ पंजाब का इशू है. ही शुड हैव एंगेज्ड विद द, जब स्पार्क स्टार्ट होता है फायर का, वहीं पे अगर एड्रेस कर लोगे तो फायर बड़ी नहीं हो जाएगी. उसने बड़ी होने दी, दिल्ली के बॉर्डर तक आने दी, फिर 9 महीने तक वहाँ बैठे रहने दी, फायर और बढ़ने दी. आम आदमी पार्टी उनको खाना भी दे रहा है, टैंकर भी दे रहा है, बिजली भी दे रहा है, एसी चलाने के लिए मजे कर रहे हैं. तो आपके दुश्मन तो एक्सप्लॉइट करेंगे. अगर आपने उनको एजुकेट नहीं किया कि इसमें आपके लिए भला क्या है और आपके जो कंसर्न्स हैं उसके लिए हम ये प्रोविजन कर रहे हैं. फार्मर के लिए बड़ा आसान था. उनको कहने के यार तू कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो तेरे को लोग बड़े से तो जाना नहीं, अंगूठा लगा लेंगे, तेरी जमीन हड़प लेंगे कॉर्पोरेट वाले, अडानी उमानी तेरी जमीन खा लेंगे. एकदम सर डेफिनेटली फार्मर जिसको बेचारे को नहीं पढ़ा जाता 2 पेज, वो आज के दिन में छोटी सी बैंक की पर्ची भी जाके किसी से बनवाता है. उसको आप कहोगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, तेरा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और फिर ऐदा कॉर्पोरेट तेरे को जमीन लैके दे देंगे, तू ਉਹਨੂੰ ਵਾਏਗਾ, ਉਹਦਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਗੇ. ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ. और जे ਉਹਦੇ कोई पहले उसमें फ्लॉ था बहुत भयंकर कि अगर उसमें कुछ भी डिस्प्यूट आता है तो एक पर्टिकुलर कोर्ट में आप पहले नहीं जा सकते. ऐसे कुछ फ्लॉज थे. अभी मुझे भी 1 साल 1.5 साल हो गया उसको देखे हुए. उसमें भी फ्लॉज थे. फिर बाद में 4 महीने बाद गवर्नमेंट ने कहा चलो हम इसके लिए हम ये कर देते हैं कि डीसी को इसको अथराइज कर देते हैं, लोकल एसपी डीसी वो उसको रिजॉल्व कर सके, और फार्मर जा सकता है, कोर्ट में भी जा सकता है. पहले उसमें प्रोहिबिशन थी कि कोर्ट नहीं जाओगे आप, ऐसे सेटलमेंट आउटर होगी. तो एक तरह से कॉर्पोरेट के हाथ मजबूत हो रहे थे जो पहले लॉ आए थे, और फार्मर के हाथ कमजोर हो रहे थे. फिर अमेंडमेंट्स दी, बट अमेंडमेंट्स भी कन्वे नहीं अच्छे से की. कैपिटल फार्मिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट व्हाट इट शुड हैव डन, जो फार्मर्स की मीटिंग होती थी दिल्ली में, आप लोगों को पता है सबको भी होती थी, दिल्ली जाते थे फार्मर्स. हाँ जी. तो वहां पे अगर मैं मोदी होता तो मैं रतन टाटा, गोदरेज, गोइंका, मुंजाल्स, ये आपके ट्राइडेंट वाले, ऐसे 20 कॉर्पोरेट्स को बुलाता और उनको कहता जो भी आना चाहता है एग्रीकल्चर में, स्टील वाले JSW एक्सेट्रा, जिंदल स्टील, और वो सारे के सारे 20 कहते हैं कि हम भी आएंगे भैया, ये सिर्फ अंबानी और ये अदानी मत सोचो कि यही आएंगे, हम भी आएंगे, और हम स्टील में भी हैं, हम सीमेंट में भी हैं. वहाँ कोई कार्टल नहीं बना. हमने आज भी सीमेंट का बैग 360 रुपए का ही केजी बिक रहा है. ऐसा नहीं कि 1000 रुपए का हो गया. अरे तो हम आएंगे, सब आएंगे, तुम्हारे केले जिसकी डील तुम्हें अच्छी लगेगी उससे अपनी फार्मिंग देना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. हम लोग इकट्ठे आएंगे सारे, हम शेलर लगाएंगे, हम आपके लिए वीट प्लांट लगाएंगे, राइस ये सॉरी क्या होता है वीट फ्लोर बनाने का वो लगाएंगे, बेकरी ये ब्रेड बनाएंगे, एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट करेंगे, पोटैटो ये वो आपको अच्छे बीज देंगे, ये फायदा होगा, आपकी इनकम दुगनी कराएंगे। और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इंश्योरेंस दे, अगर आपकी इनकम नहीं उतनी तो जितनी है वीट से आनी, उससे 20% हायर हम करा के देंगे, खराब होगी तो मेरी। ये होता है चीफ मिनिस्टर पंजाब का रोल, अगर उसने अपनी स्टेट के एग्रीकल्चर को उठाना, पॉलिटिक्स नहीं करनी तो। यू गेटिंग माय पॉइंट? स्टेट गवर्नमेंट आल्सो नीड्स टू होल्ड द हैंड ऑफ द फार्मर। तो उसमें इश्यूज थे दो में, अमेंडमेंट से पहले दो तो ठीक हो गए, थर्ड तो था ही absurd। मेरी शुरू से पोजीशन थी दैट वाज वेरी वेरी बैड एक्ट दैट हैड टू बी टेकन बैक। तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए वहाँ वो एक। फिर जब वो एजुटेशन खत्म हुआ तो गवर्नमेंट ने कहा था कि आप उठो, कोई नहीं, हम एक कमेटी बनाएंगे एमएसपी के लिए उसमें आपके फार्म लीडर्स भी होंगे, कुछ कुछ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट भी होंगे, मेरे मिनिस्ट्री के बंदे भी होंगे। ये वो 8 से 9 में 10 महीने तक मोदी ने नहीं बनाई, कमेटी नहीं बनाई। फिर लड़ाई झगड़ा हुआ, थोड़ा प्रेशर गया, ये गया, फिर एक कमेटी सी बनाई, उसमें फार्मर से नाम पूछे थे उन्होंने, जो लीडर के नाम दिए, कुछ ऐसे टू एंड फ्रो लेटरबाजी चलती रही, कमेटी नहीं बनी थी। फिर बनी एक स्टेज पे, उनकी एक दो टाइम पास मीटिंग हुई, कुछ निकला नहीं फार्मर को। अब ये एजुटेशन के लिए वो ये कह रहे हैं हमें बोला था एमएस की वो कमेटी बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, धोखा किया। और वो एक तरह से अगर मैं देखूँ तो मोदी आज फायर के साथ फिर खेल रहा है, इज टेकिंग ह्यूज रिस्क। उसको ये लग रहा है हरियाणा के फार्मर्स को मैं दे रहा हूँ एमएसपी पे, कहीं इंसेंटिव दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, वो ठीक है। उधर यूपी के किसानों को मैं गन्ने पे दे रहा हूँ अच्छी एमएसपी, अच्छा सब काम चल रहा है, तो आई एम ओके, इज फीलिंग दैट। तो बाकी किसान जुड़ नहीं जाएंगे। बट यू नेवर नो, एनी डे दैट 26 जनवरी सिचुएशन कैन अगेन अराइज, and if it happens 10 lakh people storm Delhi, which opposition would always love. Opposition would always love a Bangladesh situation in India. So Modi is playing, मेरा अपना assessment है, मेरे टचवुड normally मेरी predictions खराब नहीं होती, but आज के दिन में he is again playing with fire, badly playing with fire, over confidence में कि मेरे पास पुलिस है, मेरे पास ये है, अमित शाह है, मेरे पास आर्मी है, कुछ नहीं, सब दरी दरी है। अपने आप अपने बंदों 10,000 को नहीं गोली मार सकते आप, डेमोक्रेसी है, उठा के आपको भी जाके शरण लेनी पड़ जाएगी कहीं पे मोदी जी को, जो ये कर रहे हैं, नॉट डूइंग गुड जॉब एज फार एज एग्रीकल्चर इज कंसर्न, जस्ट कॉस्मेटिक। तो जहाँ ये है आप एक्सपोज करो, आप बनाओ, आप हरियाणा आपकी स्टेट है, ठीक है, आप 23 क्रॉप्स एमएसपी पे खरीद रहे हो, गुड, ड्रिप इरिगेशन पे इंसेंटिव दे रहे हो, पराली पे, अभी मैंने आपसे पराली का पूछना है, पेडी रेजिड्यू उसको बर्निंग पे उस पर इंसेंटिव देते हैं हरियाणा में, स्टेट गवर्नमेंट दे रही है ये सब। क्रॉप अल्टरनेट पे जाने पे भी हो रही है, कपास लगा रहे हैं, वो गन्ना लगा रहे हैं, वीट एंड राइस से शिफ्ट हो रहा है हरियाणा में, वो सब स्टेट गवर्नमेंट भी इंसेंटिव दे रही है। तो आप उसको एक्सपोज करो जहाँ गलत है पंजाब गवर्नमेंट, और प्लस आप सेंटर से हेल्प करो, एक कोडियल तो रहो, फार्मर्स के साथ कोडियल रिलेशन रहे। नो डाउट ये जो अभी जी जिन जत्थेबंदियों ने, जिन लीडर्स ने किया हुआ है, दे आर नॉट वेरी पॉजिटिव पीपल, अनफॉर्चुनेटली दे वर वेरी मच, एज आई टोल्ड यू, whenever you sit for negotiation it has to be give and take. if you take a stiff position, नहीं जी यार सारी डिमांड है, करोगे तो ठीक है, नहीं तो दौड़ जाओ, और पंजाब गवर्नमेंट कह रही है हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे जी, आग में घी, तो फिर वो कहते हैं ठीक है, जो हमने अपनी बेस्ट पोजीशन थी वो दे दी, आपको नहीं पसंद, करो फिर एजुटेशन देखिए। और इसीलिए कई जत्थेबंदियां जो है, कई फार्म यूनियंस हैं, वो इनको, संयुक्त किसान मोर्चा हैज नॉट बैक्ड दिस प्रोटेस्ट, क्योंकि हरियाणा दोनों बॉर्डर्स को बंद किया, और आप और मेरे जैसे बंदे को प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे पब्लिक की जो सपोर्ट पहले इतनी थी फार्मर एजुटेशन के लिए, आज 10% रहेगी। हर कोई कहता है तंग कर दिया यार, तुमने जाना है भगवंत मान का घर घेरो, मोदी का घर घेरो, ट्रेनों में जाओ, बसों में जाओ, जाके वहाँ मोदी के घर बैठ जाओ, वहाँ पता है दिल्ली में डंडा लगेगा या एक्शन लेगी पुलिस, और दे आर नॉट टू मनी इन नंबर नाउ, that also is a problem, because some of the farmers are also feeling it is unjustified, some of the demand and the stance taken by them, the way agitation is moving. So these are the things because of which Modi is taking a risk कि देखते हैं कितना दम है, क्या होता है। But if this Dadewal dies, जो fast पे 20 दिन हो गए, 21 दिन, तो then it can again reunite them, it can create problems for the country, forget Modi, country के लिए भी problem create हो,
श्रीलंका बांग्लादेश हुआ है, हो सकता है वो कभी भी इंडिया, विच विल बी वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एंड इट शुड नॉट। ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन का क्या रोल है? ऑपोजिशन का रोल था मीनिंगफुल अमेंडमेंट्स मूव करते हैं पहले दोनों बिलों में। थर्ड के लिए फोर्सिबली कहते हैं कि ये बिल्कुल ही खराब है, बिल इसको हटाओ। ऑपोजिशन ने क्या किया, उस पर पार्लियामेंट में उस पर खड़े होकर फाड़ के स्पीकर के मुंह पे फेंक रहे हैं बिल। इज दिस द वे डेमोक्रेसी वर्क्स? नो। अब ऐसे मोदी को घेरो, ऐसे उसकी पिटाई करो, ऐसे गिट्टे पे उसको मारो जहां उसको दर्द हो। ऐसे करने से तो आपको सस्पेंड करेगा स्पीकर, बाहर चलो दफा। और सारी कंट्री कहेगी यस दे आर क्रिएटिंग रक्कस। वो पप्पू जो है वो यहाँ ऐसे ट्रैक्टर लेके आ जाता है। क्या है आप कन्वे क्या कर रहे हो, क्या पॉइंट्स कह रहे हो, क्या आपके पास अल्टरनेट सोल्यूशन क्या है? कुछ नहीं। आई एम गिवन यू ब्रीफ अल्टरनेट सोल्यूशंस क्रैप। उतने लेवल तक अभी इस इंटरव्यू में चल जाएगा। कल को एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी की आ गई, आई एम अहमदाबाद, आई एम लखनऊ, उसमें बहुत डिटेल में जो मैं बात कर रहा हूँ अभी मैक्रो से चल जाएगा। ठीक है, चलो गुड। अब जाग जाओ थोड़ा देर, थोड़ी सी बैकग्राउंड पकड़ो, होलिस्टिकली ऊपर से चलना है, डाटा फिगर से। ऐसे ही अगर कोई आ जाता है